أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعم المولى ونعم النصير الحمد لأهله والصلاة على أهله أما بعد فقد قال الله لكم في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. آج جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حالات و آثار و خدمات سید العلماء سید علی نقی رضوان اللہ تعالی علیہ المعروف بنکن صاحب. آج سے 14 سال پہلے یعنی تقریباً 1432 ہجری میں، ابھی 1446 چل رہا ہے تو 1432 ہجری میں فی کراچی کے اندر بجانی حال میں ہم قبلہ سید علی نقی نکن صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں. آج کی اس گفتگو میں کوشش تو یہ رہے گی کہ کچھ تکراری مطالب نہ ہوں، اور انشاءاللہ کہ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ شخصیت وہ ایک ہے اور ان کے حالات اور ان کی خدمات بتانی ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں شاید ممکن ہے تکرار ہو جائے. یہ میں پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پہلے پروگرام دیکھے ہیں نکن صاحب کے بارے میں یا سنا ہے، وہ اس ذہن سے تیار رہیں کہ ممکن ہے ان کے لیے کچھ باتیں نئی نہ ہوں اور کچھ باتیں وہی پرانی ہوں. شاید ممکن ہے بہت ساری باتیں نہیں بھی ہو جائیں، لیکن سردست مثل اپنے عادت کے مطابق موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع سے مربوط کتابوں کا تعارف کرا دیا جائے. ممکن ہے کہ وقت کے آخر تک ہمیں ٹائم نہ مل سکے اور کتابوں کا تعارف رہ جائے، جس کی وجہ سے جو شائقین، جو محققین اس موضوع کے اوپر مزید اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے اپنی علم کی تشنگی جو ہے وہ پیاس بجھا سکے. جیسا کہ معلوم ہے کہ سید علی نقی نکن صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کا تعلق بر صغیر کے علمی ترین خاندان، جس کو کہتے ہیں خاندان اجتہاد، اس سے ہے، اور اس خاندان کے جد اعلیٰ حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی معروف غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں. بر صغیر کے سب سے پہلے اس خاندان کے اور ویسے بھی تقریباً مقتدر ترین مرجع تقلید اور مجتہد ہیں. سید غفران مآب کے بارے میں ہم مختلف مقامات پر مختلف عناوین سے گفتگو کر چکے ہیں. 1435 ہجری میں قبلہ غفران مآب کے 200 سالہ وفات کے عنوان سے آغا صاحب کی وفات جو ہے وہ 1235 ہجری ہے، تو 1435 ہجری میں سرزمین قم کے اندر ایک پرام مرکز احیاء آثار بر صغیر کی طرف سے تشکیل دیا گیا، جس کا عنوان تھا تحفہ اثنا عشریہ کے ردود کی رونمائی اور مرزا کامل دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہ اور سید دلدار علی غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ کی 200 سالہ وفات کے عنوان سے. اس پہ ہم نے بزرگان قوم، بزرگان پاکستان تشریف لائے، تقریریں کی، اس پر بھی ہم نے تقریباً قبلہ غفران مآب کی زندگی کے بارے میں کچھ بولا، کچھ بتایا. سردست جو چیز جلدی میں متعارف کرا کے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں ہیں جو میں تعارف کرانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آئینہ حق نما. یہ آئینہ حق نما حالات زندگی ہیں قبلہ غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ کی. یہ 2 جلدیں ہیں، یہ جلد 2 ہے، یہ جلد اول ہے. یہ 2 جلد کتاب ہے اور تقریباً 1300 صفحات پر مشتمل ہے.
1300 सफ़े की ये 2 जिल्द किताब। इसके अंदर 2-3 मौज़ूआत हैं। क़िबला ग़ुफ़रान मआब रिज़वान अल्लाह ताला अलैह के मुफ़स्सल तरीन हालात, क़िबला ग़ुफ़रान मआब रिज़वान अल्लाह ताला अलैह की तालीफ़ात का तज़किरा और उनके शागिर्दों के हालात। जो अफ़राद क़िबला ग़ुफ़रान मआब और उनके शागिर्दों के बारे में तहक़ीक़ करना चाहते हैं, हकीर की नाक़िस राय यह है कि अगर ये किताब आईना हक़ नुमा उनके पास नहीं होगी तो तहक़ीक़ कितनी ही जामी क्यों ना हो जाए, फिर आखिर नाक़िस ही रहेगी। वजह यह है कि ये वो वाहिद पहली किताब है, ये आईना हक़ नुमा वो वाहिद पहली किताब है जो ग़ुफ़रान मआब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी में लिखी गई। क़िबला ग़ुफ़रान मआब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात है 1235 हिजरी, आज चल रहा है 1446 हिजरी, यानी आज से 211 साल पहले यह किताब लिखी गई थी। वफ़ात हुई थी आगा साहब की, और ये किताब लिखी गई थी 1231 हिजरी में। क़िबला साहब की वफ़ात से 4 साल पहले ये किताब तदवीर हो के मुकम्मल हो चुकी थी। लिहाज़ा इस किताब के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो क़िबला ग़ुफ़रान मआब की भी नज़र से गुजर चुकी हैं, क़िबला ग़ुफ़रान मआब के सारे बेटों की नज़र से भी गुजर चुकी हैं, क़िबला ग़ुफ़रान मआब के सारे शागिर्दों की नज़र से भी गुजर चुके हैं। उस एतबार से कहा जा सकता है कि मुंदरजात के उन्वान से मोतबर तरीन किताब यही है कि जिनके बारे में लिखी गई है उन्होंने खुद इसको पढ़ लिया है, शागिर्दों ने भी, बेटों ने भी और खुदा साहब ने भी। इस वजह से जो अफराद भी इस मौजू पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन किताब है तहकीक करने के लिए। और ये किताब 1231 हिजरी में लिखी गई और 200 साल के बाद आके ये ईरान से छपी है। पहली मरतबा एक इदारा है मुअस्सा किताब शनासी शिया कुम के अंदर मुहक्किक के अर्जमान हजरत उस्ताद रज़ा मुख्तारी हाफ़िज़हुल्लाह की ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है। इस किताब का नुस्खा खत्ती पहला जो था जिससे इस किताब की इब्तिदा हुई वो बंदा हकीर ने मकतबतुल इल्म कराची लाइब्रेरी से उसकी फ़ोटो ली और इन मुहक्किकीन ईरानियों के हवाले किया। ये एक बेहतरीन किताब, इसको छापा जाए। आगायून ने किताब को देखा और सराहा और फिर इस किताब को इंतखाब करके तो छापा। फिर इन्होंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसके चंद नुस्खे खत्ती और भी मिल गए उनको मुख्तलिफ लाइब्रेरी। सारी तफसीलात यहीं पर है, लेकिन जिस चीज़ का इफ्तिखार है वो ये है कि इस किताब की हिफाजत भी बर सगीर के बुज़ुर्गों ने की और एक नुस्खा कराची में पहुँचा। अगर के जब नुस्खा कराची में था उसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि दुनिया में इसका दूसरा नुस्खा कहीं पर मौजूद नहीं है, और कसरत के साथ तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला था, इसलिए ये लिख दी गई थी इबारत। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब फरिश्ते छपी किताब खानों की और मुहक्किकीन ने जस्तजू की तो मज़ीद 2-4 नुस्खे और भी मिल गए। खुलासा कोई भी ख़ानदान इज्तिहाद के ऊपर काम करना चाहता है, मैं चूँकि पहले जलसे के अंदर इज़हार किया है, पहले जलसे के अंदर ख़ानदानी इज्तिहाद के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, अब मज़ीद उस मौजू को मैं टच नहीं करूँगा, सिर्फ एक किताबों को तारफ़ करूँगा। दूसरे नंबर पर किताब है जो इसी मौजू पे है और ये किताब है, इसका नाम है औराकुज़ ज़हब। औराकुज़ ज़हब इस किताब के मुसन्निफ जो हैं बर सगीर की नाबगा तरीन शख्सियत हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मुफ्ती अब्बास मूसी जवैरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो खुद एक नाबगा भी हैं, एक आलिम भी हैं, एक मुहक्किक भी हैं, 350 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ भी हैं, 6 दीवान हैं इनके मुख्तलिफ अनावीन से। खुद इनके इस शख्सियत के ऊपर क़िबला मुफ्ती अब्बास साहब के बारे में गुफ्तगू करने के लिए एक अलग से प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे तो तफसीलात बताएंगे, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी है, इनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं। सरदस्त फिरकत ये किताब औराकुज़ ज़हब बतानी है। ये औराकुज़ ज़हब क्या चीज़ है?
इसकी 3 जिल्दें हैं। ये जिल्द नंबर 3 है, इसकी 3 जिल्दें हैं। इस तीनों पढ़िए इधर। ये पहले एक जिल्द में छपी थी, फिर दोबारा जो है अभी ईरान से जो है इसी किताबखाने शिया शनासी ने आगे अली फाजली जो कौम के बेहतरीन मुहक्किक हैं, ऐन हक नुमा की भी तहकीक उन्होंने की है और औराक व ज़हब की भी तहकीक उन्होंने की है। ये 3 जिल्दों में है। ये 3 जिल्दें महवर गुफ्तगू किसके ऊपर है? क़िबला ग़ुफ़रान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के सबसे छोटे फर्जंद हैं, जो नक्कन साहब क़िबला के जद हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन साहब, उनके वालिद बुजुर्गवार सैयद अबुल हसन नकवी साहब, उनके वालिद सैयद इब्राहिम नकवी साहब, उनके वालिद सैयद मुमताज़ुल उलमा तकी जन्नत माब नकवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, और जन्नत माब के वालिद सैयदुल उलमा सैयद हुसैन इल्लियीन मकान, और सैयद इल्लियीन मकान के वालिद हैं सैयद दिलदार अली ग़ुफ़रान माब। सैयद दिलदार के 5 बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे सैयद हुसैन हैं। इसकी तफसीलात मैं 1432 वाले प्रोग्राम के अंदर इस बुझारी हाल में पेश कर चुका हूँ कि सैयद हुसैन क़िबला साहब ग़ुफ़रान माब की जो है 4 बेटे थे। मोहम्मद, सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तानुल उलमा, फिर अली, फिर हसन, फिर मेहदी, फिर 5वें नंबर पर है हुसैन। ये हुसैन 5वें नंबर पर कैसे नाम रखा गया, किसकी तफसीलात उस प्रोग्राम से सुनी जा सकती है। सैयदुल उलमा सैयद हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह नक्कन साहब के जद हैं, चौथे जद हैं। वो उस्ताद हैं मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के। मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपने उस्ताद के हालात ज़िंदगी लिखे हैं इस किताब औराक़ व ज़हब के अंदर। इस किताब औराक़ व ज़हब के अंदर ख़ुसूसियत के साथ तवज्जो अपने उस्ताद के हालात पर है। ज़िम्न के अंदर फिर दोबारा से ख़ानदान इज्तिहाद के भी हालात लिखने पड़े, उनके शागिर्दों के भी हालात हैं। और इस किताब के अंदर सुल्तानुल उलमा और मुफ्ती कुली खान रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती कुली की जो अलामातुद्दहर, इमामुल मुतकल्लिमीन, इमामत के मौजू पे दुनिया जहान तशय्यो का सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया लिखने वाली शख्सियत मीर हामिद हुसैन लखनवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के वालिद बुजुर्गवार मुफ्ती कुली, ये भी ग़ुफ़रान माब के शागिर्द हैं और उनके हालात हैं। इस किताब के अंदर सुल्तानुल उलमा सैयद मोहम्मद ग़ुफ़रान साहब के बेटे, ग़ुफ़रान माब के बेटे और आगा कुली के बहुत सारे आपस में खतूत भी हैं। कोई आदमी इस मौजू पे काम करना चाहता हो तो ये एक जामे तरीन मुस्तनद साज़ी है। तो जो बिरादरान, जो मुहक्किकीन, जो शायकीन हालात ज़िंदगी के ऊपर ख़ानदान इज्तिहाद के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, उनके अतराफ़ियों के बारे में, मुआसरीन के बारे में तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि किताब औराक़ व ज़हब का मुताला फरमाएं। किताब औराक़ व ज़हब के बाद जो तीसरे नंबर पे किताब है वो किताब है वरसतुल अंबिया। ये तीसरे नंबर पे है। ऐन हक नुमा पहले नंबर पर, औराक़ व ज़हब तरतीब ज़मानी के एतबार से तीसरे नंबर पर। एक और भी किताब है लेकिन वो अभी तक छपी नहीं है, वो अभी तक छपी नहीं है, शायद किसी दिन वो भी छप जाएगी इंशाअल्लाह। अलबत्ता मैं अर्ज़ कर चलूँ कि वो किताब जो है आगे नजफ़ हुसैन अदीम आबादी की, उस किताब का नाम है तज़किरतुल उलमा अल मुहक्किकीन। तज़किरतुल उलमा अल मुहक्किकीन वो अभी तक नुस्खा खत्ती है। वो क़िबला सुल्तानुल उलमा सैयदुल उलमा की ज़िंदगी में लिखा जा चुका था लेकिन छपा नहीं है। उसका एक मौजू, क्योंकि वो उस ज़माने के सारे उलमा के हालात ज़िंदगी पर है, ख़ुसूसियत के साथ ख़ानदान इज्तिहाद के बारे में नहीं है, लेकिन ख़ुसूसियत के साथ जो ख़ानदान इज्तिहाद के बारे में उसका हिस्सा था, थोड़ा सा टुकड़ा था, वो इस किताब वरसतुल अंबिया के अंदर आ चुका है। अलबत्ता वरसतुल अंबिया की 2 छापे हैं। एक बहुत पहले छपी थी, तकरीबन 50-170 साल पहले या उससे भी पहले। उसके अंदर ये तज़किरतुल उलमा अल मुहक्किकीन का जिक्र नहीं है। ये जदीद छाप जो किताब शनासी शिया ने छापी है उसके अंदर ये वरसतुल अंबिया जदीद छाप है।
इसके अंदर किताब तज़किरतुल उलमाए मुहक्किकीन का वो हिस्सा मौजूद है कि जो ख़ानदान इज्तिहाद से मुताल्लिक है। खुद वरसतुल अंबिया क्या चीज़ है? वरसतुल अंबिया जो है ये क़िबला अल्लामा हिंदी, जिनका नाम है सैयद अहमद नकवी, इनकी विलादत जो है वो 1295 हिजरी में है और वफात जो है 1366 हिजरी में है। ये किताब क़िबला ने फ़ारसी ज़बान में लिखी और अपने ख़ानदान इज्तिहाद के हलादिनगी, उनके शागिर्द, उनके आसार इस मौजू के ऊपर है। और अपने ख़ानदान इज्तिहाद के हलादिनगी, उनके शागिर्द, उनके आसार इस मौजू के ऊपर है। कुछ 3 किताबें, आईना हकनुमा, वरसतुल अंबिया और औराक़ुल ज़हब, ये 3 किताबें ख़ानदान इज्तिहाद के बारे में और उनके मुआसिरीन, उनके शागिर्दों के बारे में तहक़ीक़ करने के शायकीन इनकी तरफ मुराजा करें तो बहुत कुछ मिल सकता है। इसी के साथ मैं फ़िलहाल अपनी बात को रोकूंगा और मतलब आगे की तरफ पेश करूंगा। हम आते हैं अभी इस मौजू को थोड़ा सा 2 जुमलों में खुलासा करके कि ख़ानदान इज्तिहाद के पहले फ़र्द हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली दिलदार अली ग़ुफ़रान मआब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पहले फ़र्द हैं, जो खुद शागिर्द हैं उस्ताद कुल उस्ताद वहीद बैबहानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के, आगे सैयद महदी बहरुल उलूम तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के। नजफ़ में रहे, कुछ अर्सा वहाँ पर पढ़ा, फिर वापस आ गए। ज़्यादातर तालीमात जो है वो हिंदुस्तान से लेके गए थे। पहले क़िबला ग़ुफ़रान में अखबारी मसलक से थे, लेकिन जब नजफ़ गए वहाँ पर उलमा से मिले, वहाँ पर उनके अपने शुबहात पेश किए, अपने एतराज़ात पेश किए, अपनी बहसें पेश की, तो अखबारियत को छोड़ के असूली और तकलीदी जो हमारे आजकल के इस्तिलाहात हैं, अखबारी मसलक को छोड़ दिया और असूली मसलक को इख्तियार किया। फिर जब वापस आए हिंदुस्तान तो अपने उलमा उस्तादा से इजाज़त इज्तिहाद भी लिया और एक किताब आके लिखी जिसका नाम है असासुल उसूल। ये किताब है रद अमीन अस्तावादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब फ़वाइद मदनिया का, कि जो अखबारियों के तरवीज के अतबार से बड़ी मोतबर किताब मानी जाती थी, उसका रद जो है क़िबला ग़ुफ़रान मआब ने आके असासुल उसूल के नाम से हिंदुस्तान में आके लिखा। फिर इस किताब की जो है वो तशहीर भी हुई और उसको देखकर उनके उस्ताद ने मज़ीद तशवीक़ की और इजाज़त दी है। ग़ुफ़रान मआब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो पहली शख्सियत है कि जिन्होंने अपने मंतक़े अवध लखनऊ के इस इलाके के अंदर, फैज़ाबाद के अंदर, इन चीज़ों के अंदर नमाज जुमा का इनेकाद किया। नमाज जमात, अज़ादारी, ये सारी बातें मैं पहली तफसील से बता चुका हूँ, इनकी तारीख़ इधर मौजूद है, दोबारा तकरार नहीं है। इस ख़ानदान की खिदमत बहुत हैं। अगर सारे ख़ानदान के उलमा का जिक्र किया जाए तो अला माशाअल्लाह अशरे चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो ख़ानदान इज्तिहाद कहा जाता है, इन ख़ानदान के पै दर पै मुजतहिद मुतवल्लिद होते रहे, नस्लन बाद नस्लन इज्तिहाद परवरिश हुए। ख़ानदान के अंदर मुजतहिद पैदा हुए, हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी गई। इस ख़ानदान के बर सग़ीर के ऊपर बहुत एहसानात हैं। इन एहसानात की जितना तशक्कुर किया जाए, जितनी इस ख़ानदान की तकदीर की जाए, तजलील की जाए, कम है। लेकिन जो तअस्सुफ़ है, जो अफसोसनाक ख़बर है या अफसोसनाक इतला है या जिसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है, वो ये है कि जिस तरीके से इस ख़ानदान ने अपना सिलसिला इज्तिहाद शुरू किया था और एक से बढ़कर एक मुजतहिद तरबियत किए थे और पैदा किए थे इस ख़ानदान ने, इस ख़ानदान की आखिरी मुसल्लम सबूत शख्सियत जो मर्जे, मुजतहिद, आयतुल्लाह, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, फ़कीह हर हवाले से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो फिर पेश भी करेंगे, वो अल्लामा सैयद अली नकी अलमारूफ नक्कन साहब है। इस ख़ानदान के ये आखिरी मुजतहिद हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बाद, नक्कन साहब के बाद उलमा तो इस ख़ानदान में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बाब इज्तिहाद, दरवाज़ा इज्तिहाद, अब मुजतहिद मुसल्लम इस ख़ानदान में साहिब राय, साहिब फतवा, साहिब मबानी
अपने बुजुर्गों की तरह कोई बाकी नहीं बचा है, कोई नहीं है जो इज्तिहाद का दावा करे या फतवा दे या मर्जियत की कुर्सी पर आके बैठ सके। ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक खबर है। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी एक दास्तान है, इसके हम पीछे नहीं जाएंगे। फिर हम आते हैं अल्लामा सैयद अली नकी नकवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हालात ज़िंदगी की तरफ। हमने मरकज़ एहसास बर सगीर की तरफ से एक मुजल्ला छाप किया था, जो हमने पहले प्रोग्राम में भी दिखाया था। वो मुजल्ला भी इस वक्त मेरे सामने है। इसका नाम है मेरास बर सगीर। मुजल्ले का नाम है मेरास बर सगीर। ये है सैयदुल उलमा नंबर, मेरास बर सगीर सैयदुल उलमा नंबर। इसके ऊपर जो आप फोटो मुलाहिजा फरमा रहे हैं और फोटो आ रहे हैं, ऊपर ऊपर जो फोटो है ये पहला ये है हजरत अयतुल्लाह उल उलमा सैयद गफरान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का। फिर इस तरीके से तरतीब चल रही है। उनके बाद जो है सैयद हुसैन इल्लियीन मकान है, उनके सबसे छोटे बेटे। फिर उनके बाद उनके बेटे मुमताजुल उलमा। फिर उनके बाद उनके बेटे इब्राहिम सैयदुल उलमा सानी। फिर उनके बाद उनके बेटे हैं अबुल हसन और नक्कन साहब के वालिद। और फिर बीच में ये हैं नक्कन साहब। ये खानदान इज्तिहाद का तसलसल इस तरीके से है। और ये सारे के सारे मुजतहिद हैं, सारे के सारे साहिब रिसाला हैं, सारे के सारे साहिब फतवा हैं, सारे के सारे अयतुल्ला हैं, और सारे के सारे इन सब के मुकल्लिदीन मौजूद हैं। और इनमें से हर एक जो है अपनी जगह पर इस चीज़ का हामिल है कि इनके बारे में जुदा जुदा मुस्तकिल गुफ्तगू की जाए, उनके आसार को बताया जाए, लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ का वक्त नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी साथ साथ ये भी दूँ कि नक्कन साहब के जो जज हैं सैयद हुसैन इल्लियीन मकान सैयद हुसैन, इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो इनके बारे में ये 3 जिल्द किताब है। और आपको ज़्यादा इसके ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आगा साहब की जो किताब है, फारसी में बहुत सारी किताबें, लेकिन जो फारसी किताब में एतकादात के ऊपर जो किताब है उसका नाम है हदीक़त सुल्तानिया। हदीक़त सुल्तानिया के 4 बाब है, बाब तौहीद, बाब आदल, बाब नबूवत और बाब इमामत। ये 4 बाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरी खुशखबरी ये है कि बाब तौहीद और बाब आदल उर्दू भी छप चुका है। बाब तौहीद का तर्जमा ज़ैनुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा सैयद गुलाब अली शाह साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह मुल्तान वाले ने किया था। हदीक़त सुल्तानिया का तर्जमा उन्होंने किया था खज़ीना ईमानिया, तर्जमा हदीक़त सुल्तानिया। फ़कत मौज़ूए तौहीद का, चूँकि पाकिस्तान की सरज़मीन में बहस तौहीद ही थोड़ी सी मोरद इख्तिलाफ है। इस मौजू के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मिंबर के ऊपर जो है इस वक्त गुलात का सिलसिला का है या मुनहरिफीन का सिलसिला का है या अली अल्लाह नारा लगाने वालों का सिलसिला का है, वो किसी हद तक मुनहरिफ होकर गलत तरीके से तौहीद को पेश कर रहे हैं, जो मोरद इत्तिहाम तशय्युअ है, तशय्युअ के बारे में मुश्किलात ईजाद कर रहे हैं। तो क़िबला गफ़रान माब खुद गफ़रान माब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने किताब लिखी थी इमादुल इस्लाम, वो अरबी में है, वो फ़खरुद्दीन राज़ी का रद्द है, 5 जिल्दें हैं। आगा के बेटे सैयद हुसैन ने किताब लिखी है हदीक़त सुल्तानिया, ये फ़ारसी के अंदर है। उसके बाब तौहीद का तर्जमा क़िबला गुलाब शाह साहब ने किया था खज़ीना ईमानिया के नाम से, जो छप चुका है 2 मरतबा। और दूसरी मरतबा जब छपा है तो आगे गुलाब शाह साहब के लैक तरीन फर्जंद हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी शाह साहब रिज़वान हफ़ज़हुल्लाह के जिस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह क़ैद हयात भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं, जगह जगह पैगाम तौहीद, पैगाम इमामत, पैगाम तशय्युअ फैला रहे हैं, फ़आल है। उन्होंने अदल का तर्जमा किया है और साथ में अब छप चुका है। अभी इंशाअल्लाह वो तर्जमा नबूवत की तरफ मशगूल है। बाब इमामत का तर्जमा अभी तक शुरू नहीं किया है। और बाब क़यामत नहीं लिखी जा सकी और ना छप सकी, लिखी भी नहीं गई तो छपेगी क्या। बाब इमामत भी ना लिखा है क़िबला साहब ने, चूँकि वो बहुत हो गए थे, पूरा नहीं कर सके थे। तो पर अब इंशाअल्लाह तारीख चल चुकी है, कुतुब कदीमा के तर्जमे करने के, तो इंशाअल्लाह ऐसे ये किताबें आ जाएंगी। तो अर्ज़ कर रहा था कि ये मुजल्ला जो है, ये मुजल्ला मखसूस है क़िबला सैयदुल उलमा सैयद अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हालात ज़िंदगी पर, उनके उस्तादों के इजाज़ों के ऊपर, उनके शागिर्दों के इजाज़ों के ऊपर।
उनके आगा की किताबों की फहरिस्त के ऊपर जो फर्द भी जो फर्द भी क़िबला सैयदुल उलमा सैयद अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में तहकीक करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दीगर किताबों से हटकर इस मुजल्ले में पेशशुदा मवाद, क्योंकि इसके अंदर हमने मकाले भी जिक्र किए हैं, आगा की छपशुदा किताबें, पैदाशुदा किताबें, मालूम शुदा किताबें, मतबूअ किताबों की जुदा फहरिस्त भी दी है, और जितने आगा ने इजाज़त दिए थे वो भी इसके अंदर छापे हैं। जो आगा को किसी उलमा ने दिए थे वो सारे इसके अंदर छापे। आगा के उस्तादों ने 30-40 इजाज़त हैं, इसके ऊपर हम पहले गुफ्तगू कर चुके, लेकिन सर बस ये बताना था कि नक्कन साहब के बारे में ये किताब बहुत हद तक तहकीक करने वालों के लिए मदद कर सकती है। पिछले प्रोग्राम में हमने यानी 1432 वाले प्रोग्राम के अंदर हमने एक जिक्र किया था कि तारीख तशय्यो का सबसे बड़ा इजाज़ा, उस वक्त भी हमने थोड़ी सी वजाहत की थी इजाज़े के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के जो हमारे साथी थे बुजुर्गवार बिरादर बुजुर्ग हजरतुल मोहम्मद रज़ा दौदानी हाफ़िज़हुल्लाह, वो सवाल कर रहे थे, हम जवाब दे रहे थे वहाँ पर इसी बोजानी हाल के अंदर। तो उस वक्त हमने ये अर्ज़ किया था कि तारीख़ तशय्यो का सबसे बड़ा इजाज़ा जो उस्ताद अपने शागिर्दों को देता है या हम अक्सर उलमा को देते हैं, उसको इजाज़ा रिवायत भी कहते हैं, इजाज़ा इज्तिहाद भी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इजाज़ा रिवायत। इजाज़ा रिवायत क्या होता है, उसकी तफसीलात हमने उधर बताई है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को रिवायत नकल करने की इजाज़त देता है, या हम अक्सर उलमा एक दूसरे को रिवायत नकल करने की इजाज़त देते हैं। इसकी तफसीलात वहीं पे रही हैं या दूसरी किताबों में देखी जा सकती है। और वहाँ पर मैंने अर्ज़ किया था कि 461 सफ़े का वो इजाज़ा अभी तक छपा नहीं है, अब तक, यानी 1432 वाली तकरीर के अंदर। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये मारूज़ात पेश कर रहा हूँ, तो वो इजाज़ा, इसका नाम था अक़रबुल मजाज़ात। ये है अक़रबुल मजाज़ात। ये इजाज़ा करबला अतबा अब्बासिया की टीम ने छापा है करबला से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेख़त आगा साहब है, आगा साहब के अपने ख़त के साथ छपा है उसी हालत में जो कदीम था, और उसके ऊपर आगा साहब के शागिर्द और आगा साहब के मुआसिर हज़रत अयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रज़ा जलाली हाफ़िज़हुल्लाह, इस वक्त मरूज़ हैं, उनके खुदा उनको शफ़ा कामिला अता फ़रमाए, उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की, तालिका लगाया, हाशिया लगाया, सारी चीज़ें अलहदा से भी। तो अब ये किताब इस वक्त जो आपके सामने है, ये किताब असल किताब भी छप चुकी है सफ़े के साथ, और इसके ऊपर तालिके भी लग चुके हैं। ये अक़रबुल मजाज़ात तारीख़ तशय्यो का सबसे बड़ा इजाज़ा है, जो नक्कन साहब ने अपने दोस्त और अपने उस्ताद भी थे, हम मुबैसी भी थे तो दोस्त भी हैं, और उस्ताद भी थे, तो इनका नाम है हज़रत अयतुल्लाह सैयद सादिक बहरुल उलूम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनको दिया था। ये कब दिया था? जब आगा साहब नजफ में थे। इसकी मैं तफसीलात अभी आगा साहब की हालात ज़िंदगी में बताऊँ। अब हम आते हैं क़िबला सैयद अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हालात ज़िंदगी की तरफ। ये हमारी थी मुकद्दमाती गुफ्तगू, तमहीदी गुफ्तगू की, जो सैयदुल उलमा को समझने के लिए किसी हद तक पेश की गई। सैयदुल उलमा सैयद अली नकी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की हालात ज़िंदगी को हम जब तकसीम करते हैं, उनके आसार को पढ़ते हैं, देखते हैं, तकसीम करते हैं कि आगा साहब की ज़िंदगी को अगर तकसीम किया जाए तो कितने मराइल से गुजरी है। तो उम्दतन क़िबला गुफ़रा सैयद अली नकी नक्कन साहब की ज़िंदगी के मराइल को अगर हम तकसीम करें उम्दतन, तो 5 मरले हैं। हर मरला मौजूद गुफ्तगू रहेगा, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कोई तफसीली होगा और कोई मुख्तसर होगा। मरला अव्वल, क़िबला नक्कन साहब की ज़िंदगी का पहला मरला उनकी बचपना है, उसको हम तकसीम करते हैं विलादत से लेकर 9 साल तक।
बचपने से लेकर 9 साल तक क़िबला अली नकी रिजवानुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद के साथ है। अपने वालिद से नजफ़ में रहते हैं, नजफ़ में इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं, नजफ़ में बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं। जब 9 साल के थे, अच्छा ये ज़माना कौन सा बनेगा? क़िबला अल्लामा सैयद अली नकी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की विलादत है 1905 मिलादी, और हिजरी बनती है 1323। ये आगा साहब की विलादत है। जब 9 साल के थे तो नजफ से वापस आ गए थे अपने वालिद के साथ लखनऊ। इस 9 साल की उम्र में आगा साहब ने इब्तदाई तालीम भी हासिल की, मुकदमात भी पढ़े, तरफनाब भी पढ़ी। ये इब्तदाई तालीमात है आगा साहब। वापस कब आते हैं? 1900 यानी 5 में जब मुतवल्लिद हुए तो 9 साल के बाद जब आते हैं 1914 के अंदर, तो आके शुरू करते हैं लखनऊ में तालीमात। 1332 हिजरी बनती है जब आगा साहब वापस आते हैं। यहाँ पर आके ये पहला मतलब मैंने वो 2 जुमलों में शॉर्ट इसलिए याद कर दी है कि वो बचपनी की जिंदगी भी पढ़ रहे हैं, वालिद के पास पढ़ रहे हैं, दूसरे उस्तादों के पास पढ़ रहे हैं, तो वो बचपनी की जिंदगी, लेकिन ऐसे बाशऊर हो तरीके से पढ़ रहे हैं कि अरबी, बचपने में अरबी के ऊपर इनका सुल्ता कंट्रोल पूरा हो चुका था तकरीबन। उसके बाद में पेश करूंगा। 9 साल की उम्र में वापस आते हैं, 1914 में वापस आते हैं। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में शीयों के जो उस वक़्त के मदारिस हैं, सुल्तानुल मदारिस है, नाज़मिया है, उस ज़माने की जो वहाँ पर शख्सियात थी, वो शख्सियात बहुत अजीम शख्सियात, नासिर मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, नजमुल मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, बाक़िरुल उलूम। एक जुमला यहाँ पर भी मैं याद कर दूं। एक ज़माना था कि लखनऊ के अंदर 1 2 3 नहीं है, उस वक़्त हिंदुस्तान मुश्तरका हिंदुस्तान था। 5 मर्ज तकलीद मुसल्लम हिंदुस्तान में रहते थे। हत्ता कि दूसरे इलाके के अफराद जो है वो रुजू करते थे हिंदुस्तान की तरफ। वो एक अलग तारीख है। पहला मर्ज तकलीद हजरत अयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद नासिर हुसैन नासिर मिल्लत, जो मीर हामिद हुसैन साहब के फर्जंद हैं। इस खानदान का नाम है खानदान अबकात। खानदान अबकात क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि अल्लामा मीर हामिद हुसैन ने तोहफा इस्नाशरी अब्दुल अजीज की रद में किताब लिखी थी, बाब हफ्तम का जवाब। इसकी भी हम तफसीलात किसी ज़बान में पेश कर चुके हैं। बाब हफ्तम का जवाब था, इसका नाम था अबकातुल अनवार। इस किताब के ही नाम से, किताब इतनी अजीम और शाहकार है, इस किताब के नाम से पूरे खानदान का नाम पड़ा है खानदान अबकात। हैं खानदान के जो किताबों की वजह से मारूफ है, खानदान कश्फुल गता, वो भी किताब की वजह से है, पर एक दूसरा मौजू है। खानदान इज्तिहाद एक मुजतहिद परवर होने की वजह से है। उस जमाने में ये मुजतहिद है। आगा मुफ्ती अब्बास मादरत, आगा सैयद नासिर मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, नजमुल मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो एक वाकई फ़कीह थे, जिसको फ़कीह कहा जाता है, और ये खुद नजमुल मिल्लत जो है वो दामाद थे मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह के। तीसरे मुजतहिद और फ़कीह मुसल्लम अल्लामा मोहम्मद बाक़िरुल उलूम जिसे कहा जाता है, मोहम्मद बाक़िर रज़वी, जो कश्मीर के थे असालतन। उनके बुजुर्गान लखनऊ आ गए थे। फिर एक इस खानदान की भी एक तफसीलात है कि जो इस खानदान के अंदर भी एक से एक के बढ़कर मुजतहिद गुजरा है। अल्लामा बाक़िरुल उलूम उस ज़माने में मुजतहिद हैं।
ظہور الملت، شار کافی، کتاب توحید کے مصنف، کتاب عدل کے مصنف، کتاب نبوت کے مصنف، اور رسیوں کتابوں مفتی جعفر صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم ترین استاد ہیں، دیگر شگر بھی بہت ہیں، یہ بھی مرجع تقلید۔ سرزمین لاہور میں رہنے والے علامہ سید حیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں رہتے تھے۔ علامہ حیری کے والد ہیں ابو القاسم، جو باپ بیٹے دونوں کی مشترکہ میراث تفسیر لوامع التنزیل و ثوابت الطویل، جو 65 سال کی زحمات کا نتیجہ ہے، وہ اس زمانے میں مرجع تقلید۔ یہ ایک درخشان ماضی تھا ہمارا۔ بعض بزرگوں کا جملہ ہے کہ ہمارا ماضی تو بہت ہی درخشان تھا، حال بحال ہو گیا ہے، مستقبل کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ ہندوستان کے اندر داخل میں فتویٰ ملتا ہے، داخل میں مجتہد ہوتے ہیں، داخل میں شیعت کی پروان ہو رہی ہے، اور ہر طرف سے شیعت کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں تو دھیر سے شیعت کا دفاع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں علامہ سید علی نقی صاحب واپس آتے ہیں اور تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ ان کے 1332 سے لے کر 1345 تک، یعنی 13 سال وہاں پر گزارتے ہیں، سرزمین لکھنؤ کے اندر، اور علمی پختگی پوری کرتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ یہ آغا صاحب کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ 9 سال کا ہے، دوسرا مرحلہ دوبارہ ہندوستان میں آ کے تعلیم حاصل کرنے کا ہے، یہ بھی تحصیل کا ہے۔ یہاں پر 13 سال پڑھتے ہیں آغا صاحب، 1332 سے لے کر 1345 ہجری تک۔ 1345 اس تفصیل والے حصے کو بھی میں نہیں تفصیلات جا رہا ہوں کہ کیا کتابیں پڑھی، کیا نہیں پڑھی، کس طرح کے بعد کیا پڑھا، کس طرح کے کیا نہیں پڑھا، یہ ایک داستان مفصل ہے۔ لیکن خارج سے پہلے والی جتنی بھی کتابیں تھیں تقریباً ساری کی ساری وہ لکھنؤ میں پڑھ چکے تھے، مگر یہ کہ جب واپس دوبارہ لکھنؤ نجف گیا تو ایک مرور تھوڑا سا کتب مطولہ کا ایک چھوٹا سا مرور کیا اپنے مباحثے کے ساتھ۔ نقن صاحب کی زندگی کا تیسرا دور دوبارہ نجف واپس جانا ہے۔ دوبارہ نجف کب گئے؟ 1345 سے 1350 ہجری تک، 5 سال دقیق نہیں ہے، اصالتاً زمانہ بنتا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر تک مہینوں کو کاٹ لیں تو 4 سال 8 یا 10 مہینے بنتے ہیں، لیکن ہم 5 سال 45 سے 50 تک 5 سال کے عرصے کے اندر کے بعد تیسرے مرحلے میں آ کے زندگی گزارتے ہیں نجف کے اندر۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آغا صاحب اپنی جو علم حاصل کیا تھا یہاں پر آ کے جب دوبارہ نجف واپس آتے ہیں اپنے جوہر علمی دکھاتے ہیں، اپنا علمی دوسرا راوی یہ کہا کہ اپنا علمی لوح منواتے ہیں، اپنے علم کے جو جوہر دکھائے انہوں نے، تو کیا ہے؟ 2 الفاظ میں مختصر خلاصہ۔ آپ اس کے آپ سے اندازہ لگائیں قارئین محترم، سامعین محترم، کہ جب علامہ سید عبد الحسین الامینی جو کتاب غدیر کے مصنف الغدیر جو لکھ رہے تھے، 13 14 15 جلدوں میں چھپ چکی ہے یہ کتاب، پہلے 11 جلدوں میں چھپی تھی، ابھی 15 جلدوں 16 جلدوں میں چھپ چکی ہے، جس کا موضوع ہے حدیث غدیر، من کنت مولا فعلی مولا۔ اس کو اس بات کرنے کے لیے علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے من کنت مولا کے مولا کس معنی میں ہے، اس ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے علامہ امینی کے جملے یہ کہ میں نے 30 سال محنت کی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ علماء ولایت کے مخالف ہیں، دیکھیں علماء کی ولایت کے موضوع میں خطبات کیا ہے۔ اب قاتل وغیرہ ایک علیحدہ شاہکار ہے۔ علامہ عبد الحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال محنت کی ہے فقط اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو غدیر خم میں سرور کائنات نے اعلان کیا تھا، اس مولا کا معنی کیا ہے، اور امیر المومنین اولا بالتصرف ہے، اور یہی ولایت و خلافت کے حقدار ہے۔ اس موضوع کو لکھنے کے لیے آغا صاحب نے 30 سال محنت کی، اور آغا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے
اول سے لے کر آخر تک 10,000 کتاب کا مطالعہ کیا ہے، 10,000 کتاب کا مطالعہ کیا ہے آغا امینی نے غدیر رکھنے کے لیے، اور 1,00,000 کتاب کی طرف رجوع کیا ہے حوالے کے لیے. پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، صرف حوالے کے عنوان سے، مستند سازی کے عنوان سے 1,00,000 کتاب کی طرف رجوع کیا ہے. علامہ امینی نے اپنی اس کتاب کے اندر کی جو دنیا تشیع بلکہ دنیا اسلام کا شاہکار ہے، ادبی شاہکار بھی ہے، علمی شاہکار بھی ہے، اور ولایت کے لیے بہترین عمدہ کتاب ہے. اس کا اردو میں بھی الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی عربی ہر زبان میں موجود ہے. علامہ امینی نے اس کتاب کے اندر ایک کام یہ کیا تھا کہ جو دنیا اسلام کے ادیب لوگ ہیں، عربی ادیب، عربی ادب کے ماہرین، عربی ادب کے استاد، عربی ادب کے متخصص، علامہ نے عربی ادب کے ان ماہرین کے اقوال کو بھی، شعروں کو بھی، قصائد کو بھی اپنی کتاب میں جمع کیے ہے، کہ جو اپنے قصائد میں عربی ادب کے اندر انہوں نے ولایت امیر المومنین کا پرچار کیا تھا. تو یہ کیا میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ علامہ عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی کتاب الغدیر کے اندر جو مجموعہ ہے دنیا اسلام کے عربی ادب کے ماہرین کے قصائد کا، اس کتاب کے اندر نکن صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کے 3 مقامات پر قصیدے نقل کیے ہیں، مختلف موضوع کو ثابت کرنے کے لیے. جو برادران شوق رکھتے ہیں موضوع کی تحقیق کرنے کے لیے وہ الغدیر کی طرف مراجعہ کریں، سید علی نقی کا سرچ کریں تو آ جائے گا کہ نکن صاحب کے 3 مقامات پر آغا عبدالحسین امینی نے نکن صاحب اس مرحلے پہ دیکھا کہ قرن اول سے لے کر قرن 4 تک جو دنیا کے بڑے بڑے ماہرین عربی ادب آغا صاحب نے انتخاب کیے، تو ان میں سے ایک اس ہندوستانی کا بھی انتخاب ہوا، اور اس ہندوستانی کے قصائد جو ولایت کے حوالے سے تھے وہ قبلہ امینی صاحب نے اپنی کتاب الغدیر کے اندر نقل کیا. یہ ایک دلیل یا ایک مورد آغا صاحب کا علمی شاہکار، علمی ادب میں آغا صاحب کا لوہا ماننا اپنے معاصرین کا. دوسری بات، قبلہ علامہ علی نقی صاحب کے معاصر اور دنیا تشیع کے عظیم ترین عالم جن کا نام ہے، دنیا جانتی ہے، آغا بزرگ تہرانی. ان کی 2 کتاب، بہت ساری کتابیں لیکن 2 کتابیں بہت معروف ہیں. ایک کتاب کا نام ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کے اندر تقریباً ایک سوال تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی کتابیں نہیں، اس کی داستان میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ کیسے کس نے سوال کیا تھا، لیکن ایک شبہ تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے. قبلہ علامہ علی نقی صاحب کے معاصر اور دنیا تشیع کے عظیم ترین عالم جن کا نام ہے، دنیا جانتی ہے، آغا بزرگ تہرانی. ان کی 2 کتاب، بہت ساری کتابیں لیکن 2 کتابیں بہت معروف ہیں. ایک کتاب کا نام ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کے اندر تقریباً ایک سوال تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی کتابیں نہیں، اس کی داستان میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ کیسے کس نے سوال کیا تھا، لیکن ایک شبہ تھا کہ شیعوں کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو آغا بزرگ تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس شبے کا جواب دینے کے لیے کتاب لکھی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. اس کے اندر 65,000 شیعہ کتابوں کی فہرست ہے. 1 سطر 2 سطر 3 سطر 1 سطر 2 اتنا کچھ ہے، لکھا ہے کہ بھئی یہ کتاب فلاں عالم کی اس موضوع کی ہے، فلاں عالم کی اس موضوع کی یہ کتاب ہے. تو یہ فہرست لکھی تو فہرست تقریباً 30 جلدوں کے قریب پہنچ گئے. یہ آغا بزرگ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے طبقات علامہ شیعہ، علماء شیعہ کے حالات ہیں. آغا بزرگ تہرانی کی ایک مختصر سی کتاب ہے، مخصوص کتاب ہے، محسن تشیع شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو 5ویں صدی ہجری کے محقق، محدث، متکلم، فقیہ، مجتہد شیخ الطائفہ ہیں. خلاصہ شیخ الطائفہ شیخ طوسی کی جنہوں نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی تھی، جن کا بغداد میں کتاب خانہ جلا دیا گیا تھا، 80,000 کتابیں جلا دی گئی تھی. بغداد سے جب
जब हमला हुआ उसके ऊपर, बगदाद के ऊपर, तो आगा साहब वहां से निकले तो नजफ आ गए। नजफ में आके हौज अली मियां नजफ की बुनियाद रखी। तो आज तक हौज अली मियां नजफ की बुनियाद आगा साहब की रखी हुई आज तक मौजूद है। 1000 साल पूरा गुजर चुका है। तो शेख तैफा दो शिया को किताबों के बहुत बड़े मुसन्निफ हैं जो कुतुब अरबा शुमार होती है। इनमें से एक तहजीबुल अहकाम है और एक इस्तिबसार है। 4 किताबें शियों की जिसको कुतुब अरबा कहते हैं, जो शिया मजहब की मुजतहिदीन की असास है। फिक्र की उन्वान से हदीसें, असूल काफ़ी शेख कुलैनी की, मन ला यादरुल फकी शेख तद्दू की, और 2 किताबें तहजीबुल अहकाम और इस्तिबसार शेख तूसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की। शेख तूसी के हालात जिंदगी जब आगे मोहसिन बुजुर्ग तेहरानी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं, तो इस हालात के जब खात्मा किया, यानी खत्म पे आया कि जब इस किताब को खत्म कर रहे हैं, तो किताब का इख्तिताम हजरत आयतुल्ला सैयद अली नकी मलमारूब नकन साहब के उस कसीदे, उस मरसिए पर किए हैं कि जो सैयद अली नकी ने शेख तैफा के बारे में मरसिया पढ़ा था। अरबी की किताब है और इतना बड़ा मुजतहिद किताब लिख रहा है, और जो मरसिया इंतखाब की है कि इस किताब के एक इख्तितामी होना चाहिए, एक मरसिए के ऊपर होना चाहिए, तो अलामा सैयद अली नकी के मरसिए के कहे हुए मरसिए के ऊपर, पढ़े हुए मरसिए के ऊपर किताब का इख्तिताम हो रहा है। और यहाँ सब फरमा रहे हैं कि अदब अरबी का एक भी शाहकार है। तो तीसरा मरला जिंदगी जो था आगा साहब का, कि जब नजफ में आए तो इल्म हासिल किया, अपने आप को अरबी अदब के इस मकाम तक पहुंचाया कि सारे उदबा अरब ने कलमा कबूल किया कि ये आदमी अरबी का महर फकत नहीं है बल्कि उस्तादुल उस्ताद भी है। ये वो जमाना है अल्लामा सैयद अली नकी साहब का कि जिस जमाने में तशय्युअ के ऊपर मुख्तलिफ इतराज़ात है, और वो ये पहला मौका था जिसके ऊपर जन्नतुल बकी में 1925 के अंदर अरबिस्तान सऊदी हुकूमत ने हमला किया, जन्नतुल बकी को मस्मार किया, दुनिया इस्लाम ने एहतजाज किया, शिया सुन्नी सब ने एहतजाज किया कि अहले बैत की कब्रों को मस्मार कर दिया गया है, औलाद रसूल की कब्रों को मस्मार किया गया है। बल्कि वहाबी थे, उन वहाबियों ने, वो एक दास्तान अलग है। तो मुख्तलिफ इलाकों से किताबें लिखी गई, रसायल लिखे गए, एहतजाजात हुए। इसकी तफसील भी मैं उस जलसे बात कर चुका हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ। शियों की तरफ से बल्कि आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा सैयद अली नकी वो पहले फर्द हैं जिन्होंने 1925 में वहाबियत इस जुर्म, इस सबासत के जवाब में किताब लिखी थी, कश्फुन नकाब तबाह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वहाबियों के हालात, जिसको अल वहाबिया के नाम से उस किताब को मारूफ किया गया, अल वहाबिया। ये कश्फ नकाब उर्दू में भी छप चुकी है, ये कश्फ नकाब जो है वो अरबी में भी छप चुकी है, ये कश्फ नकाब अल वहाबिया जो है मुख्तलिफ तर्जुमे आ चुके हैं। एक तर्जमा अरबी में थी, एक तर्जमा खुद नकन साहब ने किया इसका। जो मैं अर्ज करना जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है 1925 में हमला होता है, 1905 में नकन साहब की विलादत है। तो जब हमला हुआ तो नकन साहब 20 साल के जवान थे। ये इस जुमले को अपने पास महफूज रखें। उसी जमाने के एक दूसरे मुजतहिद हैं, आलम तशय्युअ के सबसे बड़े मोहसिन हैं, हजरत मोहसिन अमील आमली रिजवानुल्लाह ताला अलैह, जो लुबनान के मुजतहिद हैं, लुबनान में रहते थे, बाद में नजफ में पड़े, फिर दमिश्क में उनकी कब्र है। आगा के हालात इनकी अलहदा से बहुत तफसील से पेश किए जा सकते हैं। नक्कन साहब से बड़े हैं, छोटे मोटे बड़े भी नहीं है, बहुत बड़े हैं। तकरीबन सन्ने का जो है फासला 40 साल के करीब का है, 40 साल के ब्लॉक से बड़े हैं, क्योंकि आगा साहब की विलादत जो है वो 1200
84 हिजरी में है। आगा मोहसिन अमीन नामली साहब की 84 हिजरी में विलादत है, और क़िबला दक्कन साहब की विलादत है 1323 में। आप इसके हिसाब से जमा तफरी करें, 39-40 साल बनते हैं जो नक्कन साहब से बड़े हैं। जब नक्कन साहब 20 साल के थे तो किताब लिखी थी कश्फुन निकाब अन इत्बाए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल बारो बिल वहाबिया। मोहसिन अमीन आमली रिदवानुल्लाह ताला अलैह ने 2 साल के बाद एक और किताब लिखी है, बड़ी मुफस्सल किताब लिखी है। वो इंग्लिश में भी छपी है, अरबी में तो है, फारसी में इसके 2-3 तर्जमे हुए हैं। बहुत मुफस्सल किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, 400-500 सफ़े की। उस किताब के अंदर जब आगा क़िबला मोहसिन अमीन आमली 60 साल के बुजुर्ग थे, मुज्तहिद थे, आलम थे, और उनके मुकाबले में पैदा पेश करना भी एक अलग से मिसाल है कि इतना बड़ा आलिम हम इस मौजू के ऊपर दूसरा कहाँ से लेकर आए। ये इतना बड़ा अजीम मुज्तहिद, इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा फहामा जो असालतन अरब है, लेकिन जब वहाबियत के रद में किताब लिख रहा है तो अपनी किताब के अंदर जो इक़्तिबास नोट किए हैं वो इस बड़े सगीर के, इस बच्चे के कि जिसकी उम्र 20 साल है, इस बच्ची की किताब से जो रद्द वहाबियत पे थी, इस किताब से नोट किया है और अपनी किताब के अंदर पेश किया है। नक्कन साहब 20 साल के हैं, मोहसिन अमीन आमली 60 साल के हैं। ये 60 साल का मुज्तहिद इस बच्चे की किताब से, जो उसके मुकाबले में तो बच्चा ही है, 40 साल छोटा है, लेकिन जब वहाबियत की रद्द करता है तो इस किताब से इक़्तिबासात नोट करता है। ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ? ये बताने जा रहा हूँ कि नक्कन साहब ने इल्मी एतबार से अपना लोहा अपने मुआसिरीन से सबसे मनवा लिया था, अदब अरबी के एतबार से भी और मबैस कलामी के एतबार से भी। ये नक्कन साहब की जिंदगी का तीसरा दौर है। नक्कन साहब की जिंदगी का चौथा दौर जो है वो है वापस आने का, हिंदुस्तान से नजफ से हिंदुस्तान की तरफ वापस आना। ये चौथा जिंदगी के दौर है। पांचवा दौर तालीफात, खिदमात, खुतबात, फौतगी तक है। नक्कन साहब की जिंदगी का सबसे तुलानिया तरीन जमाना ये चौथा और पांचवा जमाना है। इल्मी सतुआत नजफ में पूरी करके आ गए, मुज्तहिद बन चुके हैं, आलिम बन चुके हैं, मुतकल्लिम और फकीह की डिग्री ले चुके हैं। अब आते हैं खिदमत करने के लिए अपने हिंदुस्तान वापस। कब आते हैं वापस? 1350 हिजरी में। 1350 हिजरी में। अभी क्या चल रहा है? 1446, यानी आज से 96 साल पहले नक्कन साहब नजफ से, आज जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तो आज से 96 साल पहले नक्कन साहब नजफ से सरजमीन लखनऊ में आते हैं। इस 56 साल के अंदर तकरीबन 2-3 नस्लें खत्म हो चुकी हैं। नस्ल जदीद तो नक्कन साहब को जानती नहीं है, इससे पहले वाली नस्ल, क्योंकि नक्कन साहब की वफात 1988 है, किसी हद तक जानती है। असालतन नक्कन साहब का जो टकराव है, ये नक्कन साहब के जो मुआसिर है, या नक्कन साहब की जो जिंदगी का वो लम्हा है, वो तकरीबन तीसरी नस्ल से वाबस्ता है। आज से हमसे तीसरी नस्ल। नक्कन साहब जब वापस आते हैं, अपने उस्ताद भी सारे जिंदा हैं, जिनसे पढ़ के गए थे सारे जिंदा हैं, नजमुल मिल्लत, नासिर मिल्लत, सारे अपनी खुदा की में हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वापस आते हैं, खिदमत शुरू कर देते हैं, तालीफात शुरू कर देते हैं, लेकिन एक चीज इंतखाब करते हैं नक्कन साहब। वो क्या है? वो ये इंतखाब करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान सुन्नी शिया मुनाजरे की लपेट में था। पूरा हिंदुस्तान सुन्नी शिया मुनाजरात थे। 2 अजीब मौजूआत थे वहां पर। एक मौजू था शिया सुन्नी इख्तिलाफ, दूसरा मौजू था आज़ादी पाकिस्तान, हिंदुस्तान से आज़ादी की जंग जो पाकिस्तान बनने के लिए थी। उस तारीख को तो मैं नहीं छेड़ रहा हूँ जो आज़ादी की थी,
وہ تو موضوع نہیں ہے میرا. نقن صاحب جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہندوستان کے اندر چونکہ ہزاروں مذاہب ہیں اور دین اسلام خدا کا آفاقی دین ہے، اور اس دین کی زندہ تصویر، اصلی تصویر، حقیقی تصویر مکتب اہل بیت ہے. تو مکتب اہل بیت کو ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے دنیا کے سامنے متعارف کرایا جائے کہ دنیا جہان کا کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کی عقلانیت، معقولیت کو سمجھے اور اس کی نزدیک آئے، پڑھے اور اس کی حقیقت کو پہچانے. لہذا نقن صاحب نے جو روش اختیار کی وہ یہ تھی کہ سنی شیعہ مباحث بھی کرنے ہیں، مکتب اہل بیت کی حقانیت کو ثابت بھی کرنا ہے، لیکن مناظرے کی شکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا عجیب ہوتا ہے ایک فرض. یہ ہم بات تو بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ تصور میں لے جائیں گے نا کہ میں شیعہ بن کے ایسا لکھوں کہ سنی بھی پڑھ سکے، میں شیعہ بن کے ایسی تقریر کروں کہ سنی اور ہندو اور وہابی اور بریلوی سارے سن سکے اور سارے خوش ہوں، ایسے مطالعے پیش کروں اور مذہب شیعہ سے رتی برابر انحراف بھی نہ ہو، مذہب شیعہ سے تھوڑا بھی نہیں ہٹ رہا ہے، مجھے فقط مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرنی ہے، تو اس وقت جو ہے اس آدمی کے مغز کے اندر بہت ساری تعلیمات ہونی چاہیے، بہت سارے افق طلوع ہونے چاہیے تاکہ سب کو قریب کر سکے. یہ روش، یہ طریقہ کار نقن صاحب نے انتخاب کیا، لکھنے میں بھی اور تقریر کرنے میں بھی. متاسفانہ 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 افسوس اس بات کا ہے کہ یہ طریقہ کار نقن صاحب کی تو مقبولیت کا بہت عظیم طریقہ بنا اور نقن صاحب بہت مقبول ہو گئے، لیکن بعض افراد کو یہ بات پسند نہیں ہے یا یہ مقبولیت پسند نہیں ہے. اب نقن صاحب کے اساتید فوت ہو چکے ہیں، بزرگ کوئی رہا نہیں ہے. اب رہے کون؟ ایک نقن صاحب اور ایک نقن صاحب کے معاصرین. اب کوئی سرپرست بزرگ دوسرا نہیں ہے. علنی طور پر، حقیقی طور پر، صحیح معنوں میں مرجع تقلید، میں نے پہلے عرض کیا ہے، خاندان اجتہاد کا یہ فرق ہے. جس کو صدارت، جس کو کرسی فقاہت دی جا سکتی ہے، جس کو کرسی اجتہاد دی جا سکتی ہے، وہ سید علی نقی ہے. معاصرین کے لیے یہ بات مشکل تھی. نہیں، دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو نقن علی نقی اپنے معاصر بعد افراد سے حق نہیں ہو رہے تھے، تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اس طوفان کے پیچھے کیا تھا میں تفصیل سے اس کتاب کے اندر لکھ چکا ہوں. یہ کتاب، اس کے اندر میں تفصیل ساری بتا چکا ہوں. اس کو کہتے ہیں قضیہ شہید انسانیت. قضیہ شہید انسانیت آغا صاحب کی ایک کتاب ہے، شہید انسانیت. جب وہ لکھی تو ماشاء اللہ اس کے اندر تفصیلات پڑھیں. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ کتاب کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. نقن صاحب کی موجودگی میں کتاب کو آگ لگا دی گئی تھی. نقن صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ میں سید علی نقی اپنے ان برادران کے حکم کے اوپر اس کتاب کے مندرجات کو واپس لیتا ہوں. آپ لوگ صلح سمجھی کر لیں، ایک ہو جائے. پھر نئے طریقے سے تھوڑے سے حذف وغیرہ کر کے نقن صاحب نے شہید انسانی دوبارہ پیش کی، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا. نقن صاحب نے 1350 سے لے کر 1408 آغا صاحب کی وفات ہے. 1408 58 سال برے صغیر میں گزارے ہیں. اس 58 سال کے اندر 3 بڑے کام کیے ہیں. سب سے پہلا کام، تقریباً 300 سے زیادہ کتابوں کی تالیف کی ہے، تحقیق کی ہے، ترجمے کیے ہیں. میں نے اس کتاب کے اندر اکثر کتابوں کے فوٹو لگائے. اس وقت تک مجھے سے مراد ہمارے ادارے کو، مرکز احیاء آثار بر صغیر کو، قبلہ نقن صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ کی
250 कुतुब और रसायल मिल चुके हैं। मैं इसी गुफ्तगू के ज़रिए से क़ारीन सामीन को, ख़ानदान इज्तिहाद को, नक्कन साहब के रिश्तेदारों को, नक्कन साहब के शागिर्दों को, नक्कन साहब से मोहब्बत करने वाले अफराद को, या उन तमाम अफराद को जिनके पास नक्कन साहब की कुतुब हैं, इल्तिमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो किताबें, उनकी फ़ोटो हमें दें। हम नक्कन साहब क़िबला के बारे में एक मौसूआ तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है मजमू आसार सैयदुल उलमा। ये मजमू आसार सैयदुल उलमा के पूरे सेट हम तैयार कर रहे हैं। ये तकरीबन 25-30 जिल्दें बनेगी। इसके अंदर छोटे मोटे सारे रसायल हैं। इसको हमने तकसीम किया है तफसीरी गुफ्तगू, नक्कन साहब की कलामी और एतकादी गुफ्तगू, नक्कन साहब की तारीखी गुफ्तगू और नक्कन साहब की फ़िक़्ह के गुफ्तगू और दूसरे मौज़ूआत की जो मुतफ़र्रिक़ किस्म के हैं। ये नक्कन साहब की ज़िंदगी का शाहकार है। मेरी इल्तिजा है, इल्तिमास है ख़ुसूसियत के साथ नक्कन साहब के ख़ानदान से और उन अफराद से कि जो नक्कन साहब की किताबें उनके पास महफूज हैं, हमें दें, हमारी मदद करें। पैसों की मदद नहीं मांग रहे हम उनसे, हमारी मदद करें, किताबों का फ़ोटो दें कि ताकि हम ये मजमू आसार सैयदुल उलमा पूरा कर सकें। ये पूरा होगा तो सैयदुल उलमा की एक बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। जो अफराद भी सैयदुल उलमा या अपने मरहूम उलमा या दीगर उलमा की ज़िंदगी को चाहते हैं, ये उलमा क्या नाम है, दुनिया के सामने मुतारिफ हो, इनकी खिदमत दुनिया के सारे मुतारिफ हो, तो इसका वाहिद तरीका ये है कि ये उलमा जो अपने इल्मी आसार अपने पीछे छोड़ के गए हैं, उन आसार को दुनिया के सामने लेकर आए, उन आसार को जिंदा करें, उन आसार को इह्या करें, उन आसार को छापें। तो हम क्योंकि मौजूद हमारा सैयद अली नकी नक्कन साहब है, तो हम इस मजमूए को छाप कर रहे हैं मजमू आसार सैयदुल उलमा के नाम से। और ये मजमुआ इंशाअल्लाह आमादगी के मरहल पे है। मुझे बार बार इशारे हो रहे हैं कि आपका वक्त तमाम हो चुका है और अभी हम 5वें मरहले में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन 58 साल की ज़िंदगी जो साहब की है, ये बहुत दर्दनाक, वहशतनाक, अफसोसनाक ज़िंदगी है। इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक मौका मिला तो एक नशिस्त हम इस मौजू पे करेंगे कि नक्कन साहब की आसार किन किन मौजूआत पे किस रविश पे लिखे जा चुके हैं। कुछ मैं पहले बता चुका था, लेकिन इस मौजू इसको तारफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। किसी मौके पर इंशाअल्लाह हम मुतारिफ करेंगे। इसके साथ कि मैं अलविदा करूँ, दोबारा इल्तिजा है तमाम उन अफराद से, तमाम उन खय्यरीन से, तमाम उन आशिकीन इल्म से जिनके पास उलमा के आसार मौजूद हैं, वो मरकज़ इह्या आसार बरसग़ीर के साथ ताउन करें, अपने अपने बुज़ुर्गों के आसार के फ़ोटो हमें दें, अक्स दें। हम दुनिया जहान के सामने, दुनिया तशय्यो के सामने इन तमाम बुज़ुर्गान बरसग़ीर के आसार को दोबारा से पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।